ونصلي على رسوله الكريم الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا میں مشقت اور مجاہدے کے لیے پیدا فرمایا. دوسری مخلوق کی بنسبت انسان کی زندگی زیادہ مجاہدے میں گزر رہی ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ صبح ہوتی ہے ہر بندہ کوئی نہ کوئی فکر لے کے اٹھتا ہے. کسی کو دکان کی فکر لگی ہوتی ہے، کوئی کھیت کی طرف بھاگ رہا ہوتا ہے، کسی نے فیکٹری کا رخ کیا ہوتا ہے، کوئی منڈی کی طرف جا رہا ہوتا ہے، کوئی آفس کی طرف بھاگ رہا ہوتا ہے، اور صبح سے لے کے شام تک جاپانی مشین کی طرح بھاگ بھاگ کے کام کرتے ہیں. شام کو گھر لوٹتے ہیں تھکاوٹ سے چور چور ہوتے ہیں. یہ تقریباً ہر بندے کی زندگی کا یہی عکس اور یہی تصویر ہے. تاہم دیکھنے والی بات یہ ہے کہ یہ کوششیں اللہ کے ہاں کوئی قدر و قیمت بھی رکھتی ہیں یا نہیں رکھتی. ان کوششوں کا کوئی صلہ، کوئی بدلہ اللہ کے ہاں متعین ہے یا نہیں، یہ بات سمجھنے والی ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے 2 آیتوں میں اس معاملے کو صاف کر دیا ہے. ایک آیت ہے کہ قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، محبوب آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ ہم آپ کو بتائیں کہ اعمال کے لحاظ سے گھاٹے اور خسارے میں کون لوگ ہیں. الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، جن کی محنتیں دنیا کی زندگی میں ضائع ہو جاتی ہیں. وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، اور ان کا یہ گمان ہوتا ہے کہ ہم بہت اچھا کرنے والے ہیں. یہ لوگ اصل میں خسارے میں ہیں. ان کی محنتیں، ان کی کوششیں صرف اور صرف دنیا کی زندگی کے لیے ہوتی ہیں. جو ہی یہ آنکھیں بند ہو جاتی ہیں ان کی کوششوں کا ثمرہ ملنا بند ہو جاتا ہے. چنانچہ ہم دیکھتے ہیں اکثر لوگ بیچارے ایسی ہی زندگی گزارتے ہیں. جب تک وہ زندہ ہیں اپنی محنت کا پھل ان کو مل رہا ہوتا ہے، لیکن جو ہی دنیا سے سفر شروع کر دیتے ہیں یہ سب کچھ پیچھے رہ جاتا ہے. آگے لے جانے کے لیے ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا. یہ خسارے میں ہیں. فائدے میں کون لوگ ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے ایک اور آیت میں فرمایا وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا، جو بندہ آخرت کی کامیابی چاہتا ہے اور اس کے لیے کوشش کرتا ہے جیسا کہ کوشش کرنے کا حق ہے، فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، ایسے لوگوں کی کوششیں اللہ کے ہاں قابل قدر ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ ایسی کوششوں کا قدردان ہے جس میں بندہ آخرت کی کامیابی چاہتا ہے. تو یہ 2 آیتوں نے ہمارے سامنے معاملہ بالکل واضح کر دیا کہ دنیا کے لیے، دنیا کی زندگی کے لیے کی گئی کوششیں
कोई माना, कोई हकीकत नहीं रखती, और आखिरत के लिए की गई कोशिशें अल्लाह के यहाँ काबिल कदर और काबिल शुक्रिया है। अल्लाह ताला ऐसी कोशिशों का कदरदान है। मेरे भाइयों, मेहनत के हवाले से, तग-दो के हवाले से इंसान 4 बड़ी गलतियां करता है। सबसे पहली गलती तो ये कि इसने आखिरत पर मेहनत करनी थी, ये दुनिया पर मेहनत करने लग गया, और ऐसे मगन हो गया कि भूल गया कि हमने मरना भी है और आखिरत में भी हमें कुछ चाहिए। शब रोज एक करके लगे हुए हैं, आगे पीछे नहीं देखते। माल पैसे का नशा चढ़ जाता है तो बंदे की आंखों पे पर्दा दर पर्दा आ जाता है। सब कुछ खुली आंखों से देखने के बावजूद कुछ भी नजर नहीं आता। जैद, अमर, बकर, वो जो बड़े बने फिरते थे, वो उन्होंने बहुत मेहनत की, बहुत भाग दौड़ की, लेकिन हमारी आंखों के सामने खाली हाथ चले गए दुनिया से, हमें फिर भी एहसास नहीं होता। सब कुछ देख रहे होते हैं, फिर भी कुछ नजर नहीं आता। ऐसे मगन हो जाते हैं कि वो जब भी कुछ देखते हैं, कोई भी फैसला करते हैं, जब भी कदम बढ़ाते हैं, ये देखते हैं कि मुझे फायदा क्या मिलेगा। वो अगर रिश्तेदारों के साथ मेल मुलाकात करते हैं, दुनियावी फायदा मद्देनजर होता है। किसी के साथ दोस्ती रखते हैं तो दुनियावी अगराज को देखते हैं। किसी को रिश्ता देते हैं या रिश्ता लेते हैं, ये देखते हैं कि मुझे दुनियावी फायदा कुछ होगा या नहीं होगा। हर चीज में दुनिया, माल, पैसा। मुफ्ती तकी उस्मानी साहब दामत बरकातुहुम ने शायद खुतबात में लिखा हुआ है, ये तो लतीफा लेकिन बात समझने के लिए मुनासिब है, कि एक बड़ा ताजिर जो हर वक्त पैसा पैसा करता था, फौत हो गया। तो फरिश्तों ने पूछा कि जन्नत में जाना है या जहन्नम में? तो उसने कहा कि जहां 2-4 पैसे का फायदा हो वहां भेज दो। जहां 2-4 पैसे का फायदा हो वहां पे, यानी वहां पे भी 2-4 पैसे का फायदा ही उनको मतलूब होता है। मौलाना तारिक जमील साहब ने कहा कि इन लोगों का हाल ये होता है कि अगर बीमार हो जाए तो आप उनसे पूछें कि भाई तबीयत कैसी है, कहते हैं रुपए में 12 आने का फर्क है। वहां पे भी रुपए और 12 आने का चक्कर चल रहा होता है। ये रुपए और 12 आने से ये लोग निकले नहीं हैं। हर मोड़ पे दुनिया का फायदा, हर कदम पे दुनिया का फायदा लगे हुई है। एक मुकाबला शुरू है। जिंदगियां गुजर जाती हैं पैसा जमा करते करते। जवानी गुजर गई, पक्की उम्र थी वो उम्र गुजर गई, बुढ़ापा आ गया, फिर भी बेचारी की हालत ये होती है मनहूमान ला यशबान। जैसा कि हुजूर ने फरमाया, 2 हरीस कभी सैर नहीं होते। मनहूमन फी दुनिया ला यशबअ मिनहा, दुनिया का हरीस कभी सैर नहीं होता। आप यकीन करें, अल्लाह ताला हमें माफ फरमाए, अल्लाह ताला हमारी हिफाजत फरमाए। यानी हमारे इस मुआशरे में कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने इतना जमा किया, इतना जमा किया, बल्कि मैं ये कहूं इतना लूटा कि अगर ये हाथ पे हाथ रख के बैठ जाएं, कुछ भी न करें, फिर भी इनकी आने वाली 10 नस्लों से ये सब कुछ खत्म नहीं होगा। लेकिन इसके बावजूद इन बेचारों का हाल ये होता है कि ये देखते हैं कि गरीब के मुंह में जो लुकमा जा रहा है, ये मेरी तजूरी में क्यों नहीं आ रहा, तो कोशिश करते हैं कि वहां से खींच के अपनी तजूरी में डाल दें। और पता नहीं फिर अपने आप को महफूज करने के लिए क्या इस्तिस्ना हासिल करते हैं, क्या तरामीम करते हैं। मकसद क्या होता है कि इतना मैंने कुछ किया है, अभी मैं सैर नहीं हुआ, पता नहीं जिंदगी में दोबारा मौका मिलेगा या नहीं मौका मिलेगा, तो मुझे कानूनी तौर पे एक मौके से फायदा उठाना ये मेरे लिए जायज करार दिया जाए।
کہ میں کھل کے فائدہ اٹھاؤں اور بعد میں کوئی مجھ پہ ہاتھ بھی نہ ڈال سکے، نہ قانون ہاتھ ڈال سکے، نہ کوئی بندہ آہ کر سکے، میں اپنی مرضی سے سب کچھ کر لوں۔ ہم نے آخرت پہ محنت کرنی تھی، ہم دنیا پر محنت کرنے میں مگن ہو گئے، اور ایسے مگن ہو گئے کہ بھائی بھائی کے ساتھ باہم دست و گریبان نظر آتا ہے، باپ اور بیٹے کے درمیان سرد جنگ چل رہی ہے، میاں بیوی کا جھگڑا کئی مرتبہ اسی مال پیسے کی وجہ سے ہوتا ہے، قریبی رشتے ناتے دنیا کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتے، یہ آج کل لوگوں کی ذہنیت بن چکی ہے۔ پہلی غلطی، ہم نے آخرت پہ محنت کرنی تھی، ہم نے دنیا پہ محنت کر لی۔ اور یقینی بات ہے کہ انسان اپنی عاقبت کو، اپنی انجام کو ایسے بھول جاتا ہے کہ 2 دن کی زندگی کے لیے اتنی کوشش کرنے والا آخرت کی دائمی زندگی کے لیے صرف 5 مرتبہ اللہ کے دربار میں حاضری نہیں دے سکتا۔ یہ پہلی غلطی تھی۔ ہماری دوسری بڑی غلطی یہ کہ ہم نے دل پہ محنت کرنی تھی، ہم نے جسم پہ محنت شروع کر دی۔ دل پہ محنت کرنی تھی، دل کو بنانا تھا، دل کو سنوارنا تھا، کیونکہ دل نے ہی ہمیں روز آخرت اللہ کے دربار میں نجات دلانی ہے۔ یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم۔ قیامت کے دن نہ تو انسان کو مال نفع دے سکے گا، نہ اولاد نفع دے سکے گی، ہاں جو بندہ اللہ کے پاس صاف ستھرا سنورا ہوا دل لے کے آیا، یہ دل بندے کو نفع دے سکے گا۔ ہم نے دل پر محنت کرنی تھی، لیکن ہم جسم پر محنت کرنے میں لگ گئے، اور جسم پر اتنی محنت کہ انسان حیران ہو جاتا ہے۔ آپ سوچیں کہ ہمارے معاشرے میں اس جسم کی جو ضروریات ہیں، ان ضروریات کی تکمیل کے لیے کیا کچھ انسانوں نے جال بچھائے ہوئے ہیں۔ جسم کو کپڑا چاہیے تو کپڑا سازی، کپڑا بنانا ایک بہت بڑی صنعت کی شکل اختیار کر چکا ہے۔ جسم کو غذا چاہیے تو آدھی سے زیادہ انسانیت غذا بنانے میں لگی ہوئی ہے۔ کہ آپ کو کھیتوں میں کام کرنے والے کاشتکار نظر آتے ہیں، باغات میں کام کرنے والے باغبان نظر آتے ہیں، سبزی منڈی، فروٹ منڈی، غلہ منڈی میں آپ کو کام کرنے والے تاجر یا مزدور نظر آتے ہیں، یا پھر یہ ہوٹل ہیں اور ریسٹورنٹ ہیں اور فوڈ ہیں اور یہ مشروبات ہیں، یہ جو لمبے لمبے سلسلے بنے ہوئے ہیں، یہ ساری کی ساری اس پیٹ کی خدمت ہو رہی ہے، اور اس پیٹ کی لمبائی اور چوڑائی ایک بالشت کے برابر بھی نہیں ہے۔ یعنی انسان کو کن کاموں میں لگایا ہے جس پیٹ کی لمبائی چوڑائی ایک بالشت کے برابر بھی نہیں ہے، اسی پیٹ کو پالنے کے لیے آدھی سے زیادہ انسانیت دن رات ایک کر کے مگن ہو چکی ہے۔ خواتین بیچاریوں کی آدھی سے زیادہ زندگی باورچی خانے میں گزر رہی ہے۔ بے وقوف بنایا جا رہا ہے انسانیت۔ کہاں سے ہم نے کھانے کے فارمولے امپورٹ کر لیے۔ دنیا کی کسی کونے میں اگر کوئی منفرد کھانا بنتا ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ اپنے ہاں متعارف کرائیں۔ آپ کو پتا ہے، کہتے یہ چائنیز چاول ہیں، یہ ڈھاکا چکن ہے، یہ رشین سلاد ہے، یہ اٹالین پیزا ہے، یہ کابلی پلاؤ ہے، یہ دہلی قورمہ ہے۔ کہاں سے ہم نے کھانے پینے کے فارمولے امپورٹ کر لیے اس پیٹ کی خدمت کے لیے، اور یہ پیٹ وہ فیکٹری ہے جس کی پروڈکشن ہم سب کو پتا ہے۔ اسی پیٹ کی خدمت میں انسان لگا ہوا ہے۔ میں
याकुलूना कमा ताकुलुल अनआम, कुरान कहता है जैसे चौपाए खाते हैं, और चौपायों ने, जानवरों ने खाने पीने को जिंदगी का नस्बुल आइन बनाया हुआ है, इन इंसानों का यही हाल है। खाना पीना जिंदगी का नस्बुल आइन, या तो खा रहे होते हैं, या खाने के मंसूबे बना रहे होते हैं, या खाना बना रहे होते हैं, या बाद में खाना हजम करने के लिए दौड़ लगा रहे होते हैं। गोया कि पूरी जिंदगी हमारे खाने पीने के इर्द गिर्द घूम रही है। इंसान अपने जिस्म की जरूरत को पूरा करने के लिए दिन रात एक करके मगन है। कपड़ा चाहिए तो कपड़ा साजी सनअत की शक्ल इख्तियार कर चुकी है। खाना चाहिए तो आप हैरान हो जाएंगे, खाना एक ऐसा फन बन चुका है कि अब तो खाना बनाने के फन में बाकायदा PhD करवाई जाती है, मकाले लिखे जाते हैं, बाकायदा कॉलेज यूनिवर्सिटियों में ये फन पढ़ाया जाता है। इस कदर जरूरी हो गया है। अगर हमें दवा चाहिए तो जिस्म की जरूरत को पूरा करने के लिए ये अस्पताल हैं, ये दवाखाने हैं, ये शिफाखाने हैं, ये क्लिनिक हैं, ये एलोपैथिक है, ये होम्योपैथिक है, ये तिब्बी यूनानी है, और पता नहीं इसके अलावा किया कुछ है। जिस्म की जरूरत पूरी हो रही है। जिस्म को बनाना है, इसको संवारना है, इसको साफ सुथरा रखना है, क्या कुछ ईजाद हो चुका है। ये फिटनेस सेंटर है, और ये पार्लर बने हुए हैं, और इसके अलावा क्या कुछ है वो शायद आप लोगों को मालूम है, हमें इतना मालूम नहीं है। जिस्म को फिट फाट रखा जाता है, शैम्पू है तो लोशन है तो साबुन है तो और क्या कुछ है। यानी आप अंदाजा लगाएं कि इंसानी जिस्म में ये जो बाल होते हैं ये सबसे कम कीमत जुज है। लोग कहते हैं मैं तो इसको बाल के बराबर भी नहीं समझता, इसके तो बाल के बराबर भी कीमत नहीं है, वो तो मेरा बाल भी बेका न कर सका। बाल सबसे कम कीमत, और उसी बाल को बनाने और संवारने के लिए इंसानियत का एक बहुत बड़ा तबका दिन रात एक करके मसरूफ अमल है कि बालों को 5 फुट तक लंबा कैसे किया जा सकता है, बालों को गिरने से कैसे बचाया जा सकता है, बालों को सफेद होने से कैसे रोका जा सकता है, बालों को नरम और मुलायम कैसे रखा जा सकता है, मसनूई बाल कैसे लगाए जा सकते हैं, और ये बाल न हो सर पे गंजापन को कैसे खत्म किया जा सकता है। यानी बड़े बड़े माहिरीन दिन रात एक करके इसी पे गौर फिक्र कर रहे हैं, और जो सबसे कम कीमत जुज है। हमें किन कामों में लगाया इन लोगों ने? क्या हम इसी मकसद के लिए दुनिया में आए थे? क्या एक इंसान की जिंदगी की औकात इतने कम कीमत होती है? हमने अपने दिल पे मेहनत करनी थी, हम अपने जिस्म पर मेहनत कर रहे हैं। फिर हम दुनिया में आए थे कि हम रूह पे मेहनत करें, हमने मादे पर मेहनत करनी शुरू कर दी। रूह और मादा, ये 2 ताकतें हैं जो इस दुनिया में हमें नजर आती हैं। रूह अपने अंदर एक कुव्वत रखती है, मादा बजाते खुद एक कुव्वत है। मैं कहता हूं किसी के ऊपर से ईंट गिरे, ईंट मादे की बनी हुई है, पता चल जाता है कि ईंट में कितनी कुव्वत है। किसी को लोहे की राड से मारें तो पता चल जाता है कि मादे में कितनी कुव्वत है। मादा अपनी जात में एक कुव्वत है, लेकिन इसके बिलमुकाबिल रूह भी एक कुव्वत है। हमने रूह पर मेहनत करनी थी, हम मादे पर मेहनत करने में मगन हो चुके हैं। मैं बताऊं आपको कि धागा ये मादा है। इंसान ने मादे पर मेहनत की, बेहतरीन कपड़ा ईजाद कर लिया। लकड़ी मादा है, इंसान ने लकड़ी पर मेहनत की, बेहतरीन फर्नीचर दरवाजे तैयार कर लिए। पत्थर मादा है, इंसान ने इस मादे पर मेहनत की, किया बेहतरीन कारीगरी और सन्नाई दिखाई।
लोहा मादा है, इंसान ने इस मादे पर मेहनत की और इस लोहे को हवा में उड़ाना शुरू कर दिया। प्लास्टिक मादा है, इंसान ने प्लास्टिक पर मेहनत की, पता नहीं क्या कुछ ईजाद कर लिया, और हम ये मानते हैं कि मादे पर मेहनत कर करके इंसान ने तरक्की का हक अदा कर दिया। और पता नहीं आज से 20 साल बाद, 50 साल बाद और क्या कुछ इजादात सामने आएंगी। मादे पर मेहनत करके इंसान ने हक अदा कर दिया, लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है कि इस इंसान ने अपने ऊपर मेहनत न करके पस्ती और गिरावट की इंतहा कर दी है। मादे पर मेहनत कर करके इंसान ने हवा के दोष पे सफर करना शुरू कर दिया, लेकिन रूह पे मेहनत न करके इंसान अखलाकी तौर पे क़अर मुज़ल्लत में धंसता चला जा रहा है। जैसे हम मादी तरक्की को देखते हैं तो हम समझते हैं कि इंसान ने बहुत तरक्की कर ली, वहां अखलाकी गिरावट को देखें तो इंसानी तारीख में कभी भी इंसान इतना गिरा हुआ नहीं था जितना अब ये गिरा हुआ नजर आता है। अखलाकी एतबार से इंसान गिरावट की इंतहा को पहुंच चुका है। तारीख का मुताला करें। आपने अगर जुल्म सितम की दास्तानें पढ़नी है तो तातारियों की, हलाकू और चंगेज खान की तारीख पढ़ लें। आपने अगर बेहयाई और फहाशी का पढ़ना हो तो पुरानी तारीख का मुताला करें। आपने अगर जुल्म और सितम की तारीख पढ़नी हो तो पढ़ लें। लेकिन अगर आप उन बुराइयों का मुवाजना आज की बुराइयों के साथ करेंगे तो आज की बुराइयों का पल्ला भारी नजर आएगा। आज की बुराइयां इनके मुकाबले में पुरानी बुराइयों की कोई हैसियत नहीं है। अखलाकी तौर पे, माशी तौर पे, मुआशरती तौर पे इंसान गिरावट की इंतहा को पहुंच चुका है, क्योंकि इंसान की तरबियत नहीं है, इंसान की रूह पर मेहनत नहीं हो रही, इंसान को हकीकी मानों में इंसान नहीं बनाया जा रहा। हजरात अंबिया किराम दुनिया में आए, उन्होंने मादे पर मेहनत नहीं की, उन्होंने इंसानों पर मेहनत की और इंसानों को हकीकी मानों में इंसान बनाया था। नतीजा क्या निकला कि मेहमान आया घर में खाने के लिए कुछ नहीं है तो बच्चों को बहला फिसला के सुला दिया। एक बंदे का खाना था घर में और कुछ नहीं था तो बच्चों को बहला फिसला के सुला दिया। खातून खाना ने चराग बुझाकर अंधेरा कर दिया। मियां बीवी दोनों मेहमान के साथ बैठ गए। अब यूं हाथ हिला रहे हैं, मुंह हिला रहे हैं, जैसे वो भी साथ साथ खा रहे हैं, लेकिन वो नहीं खा रहे थे। सब कुछ मेहमान को खिलाया जा रहा था। और कुरान मजीद ने उस कुर्बानी की तारीफ और तौसीफ फरमाई है कि आज के मुआशरे में इसकी कोई मिसाल मिल सकती है। तरक्की तो बहुत हो गई, इंसान चांद पे चढ़ गया, मरीख पे चढ़ जाएगा और पता नहीं इससे आगे कहां चढ़ेगा, लेकिन अखलाकी तौर पे इसकी कोई मिसाल मिल सकती है। तरक्की तो इंसान ने बहुत की है, लेकिन कभी किसी के हक पे डाका डालने का मौका मिल जाए, फिर देख लेना कि ये तरक्की याफ्ता इंसान है या फिर ये हैवान बना हुआ है। इसके अंदर इंसानियत नाम की कोई चीज नहीं है। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सहरा में थे, एक चरवाहे को देखा, बकरियां चरा रहा था। सोचा कि मैं इस चरवाहे का इम्तिहान ले लूं। तो चरवाहे से कहा कि आप मुझे एक बकरी दे दे, मुझे बकरी की जरूरत है। उसने कहा कि बकरी तो मेरी नहीं है, मैं नहीं दे सकता। हजरत ने फरमाया कि आप मुझसे पैसे ले लें, कीमतन दे दें। उसने कहा मेरी नहीं है, मेरे मालिक की है, मैं आपको नहीं बेच सकता। तो हजरत अब्दुल्ला बिन उमर ने कहा कि कोई मसला नहीं है, आप बकरी मुझे बेच दें और आप पैसे जेब में डाल दें। ये हजारों भेड़ बकरियां हैं, पहले तो मालिक को पता भी नहीं चलेगा कि कोई बकरी कम हो चुकी है
अगर मालिक को पता चल भी जाए तो उसको बता देना कि जंगल में भेड़िया आ गया और एक बकरी उठा के लेके चला गया और जंगल में ऐसा होता रहता है। तो उस चरवाहे ने जवाब दिया कि अगरचे इस वक्त मेरा मालिक मुझे नहीं देख रहा, लेकिन फ़अैन अल्लाह, तो अल्लाह कहां है? गोया कि अल्लाह तो मुझे देख रहा है। ये वो इंसानियत पर मेहनत हो चुकी थी, इंसान की रूह पर मेहनत हो चुकी थी। जंगल है, बेआबान है, मालिक नहीं देख रहा। हजारों भेड़ बकरियों में से एक बकरी को गायब करना कोई दुश्वार नहीं था, लेकिन करप्शन, बददियानती मजाल है कि उस मुआशरे के अंदर दरा थी। और आज सारी दुनिया लगी हुई है कि करप्शन खत्म हो जाए, बददियानती खत्म हो जाए, लेकिन मजाल है कि हम इसको खत्म कर सके। वजह किया है कि हमने इंसान पर मेहनत नहीं की, हमने मादे पर मेहनत की है। काश कि हम इंसान पर मेहनत करते तो ये हालात ऐसे ना होते। हमने मादे पर मेहनत करके अस्पताल तो बड़े अच्छे बनाए, मरीजों के लिए वार्ड में सारी सहूलियात रख दी, दवाइयां बड़ी मेयारी और लेबॉर्ट्रियां और मशीनें बड़ी मेयारी, लेकिन हमने डॉक्टर पे मेहनत नहीं की। नतीजा क्या निकला कि वो अस्पताल जहां पे डॉक्टरी का पेशा मसीहाई का पेशा होता था, वही अस्पताल तिजारत गाहें बनी हुई है और पैसा कमाने के मराकिज बन चुके हैं। चुनांचे डॉक्टर हजरात मरीज को घाक कहते हैं कि घाक आजकल कम आ रहे हैं, आजकल ज्यादा आ रहे हैं। जहां डॉक्टर की नजर मरीज के दर्द पर नहीं होती, मरीज की जेब पर होती है, और जहां मरीजों को अस्पताल से कोई फायदा मिलने की बजाय, सुकून मिलने की बजाय दर्द ही मिलता है। वजह किया है कि आपने अस्पताल पर मेहनत की है, आपने डॉक्टर पर मेहनत नहीं की। आपने कचहरी और अदालत की इमारत अच्छी बनाई, जज के लिए आपने कुर्सी अच्छी रखी और मराआत पूरी दे दी, हर किस्म की मराआत। जब तक जज है फिर भी मराआत, जब रिटायर हो जाए फिर भी मराआत, हयात मराआत का ऐलान कर दें। लेकिन जब तक आप जज पे मेहनत नहीं करेंगे, अदल और इंसाफ का मेयार गिरता हुआ जाएगा, कभी ऊपर को नहीं आएगा। नतीजा क्या निकलेगा कि मकतूल की मां अदालत में अपना हक वसूल करने के लिए बकरियां बेचने पर मजबूर हो जाएंगी, अपनी चूड़ियां बेचने पर मजबूर हो जाएंगी। गरीबों की आहें अदालतों की दीवारों के साथ टकरा के वापस लौट के आएंगी, कोई सुनवाई नहीं होगी, क्योंकि आपने मादे पर मेहनत की है, आपने इंसान की रूह पर मेहनत नहीं की है। इंसान अगर हकीकी मानों में इंसान बन जाता तो फिर यह हाल ना होता। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु 22 लाख मुरब्बा मील सरजमीन के हुक्मरान थे। एक मर्तबा सहाबा किराम के दरमियान बैठे हुए थे और फरमाया कि अगर मैं अपनी खिलाफत में कोई कजी इख्तियार कर लूं, कोई टेढ़ापन इख्तियार कर लूं, राह हक से हटने की कोशिश करूं, तो तुम क्या करोगे? तुम क्या करोगे? एक बंदा खड़ा हो गया, उसके हाथ में तलवार थी, फौरन तलवार नियाम से बाहर खींच ली और कहने लगे, अमीरुल मोमिनीन, अगर हमने महसूस कर लिया कि आपकी इस काम में, इस अमारत में एक बाल के बराबर भी कोई टेढ़ापन आ चुका है, हम इस तलवार से आपको सीधा कर देंगे। 22 लाख मुरब्बा मील सरजमीन पे हुकूमत करने वाला हुक्मरान और एक आम बंदा खड़ा होकर कहता है कि हम तलवार से आपको सीधा कर देंगे। एक वो वक्त था कि इंसान पर मेहनत हो चुकी थी और उसने गुस्सा नहीं किया, नाराजगी का इजहार नहीं किया, बल्कि शुक्र अदा किया, ऐ अल्लाह तेरा शुक्र है कि मेरे महबूब की उम्मत में आज भी ऐसे लोग मौजूद हैं कि उमर के टेढ़ेपन को तलवार से सीधा कर सकते हैं। और आज तो कहते हैं कि नहीं, मेरे ऊपर कोई कानून की गिरफ्त नहीं होनी चाहिए, मुझे इस्तिस्ना मिलना चाहिए, ताहयात इस्तिस्ना मिलना चाहिए, और दे रहे हैं इस्तिस्ना और दे दी इस्तिस्ना। और जिन लोगों ने इस्तिस्ना दी है वही लोग कल हमारे पास आएंगे तो हमें कहेंगे भाई हमें दोबारा मुंतखब कर दो, हम तुम्हारे मुल्क के अंदर इनकलाब बर्पा कर देंगे, और फिर हम दोबारा आंखें बंद करके फिर उनको वोट देंगे।
इंसान पर हमने मेहनत नहीं की है, हमने मादे पर मेहनत कर करके बहुत तरक्की कर ली, लेकिन काश कि हम इंसान की रूह पर मेहनत करते तो ये हालात ऐसे ना होते। मोटरवे तो आपने बना दी है, बड़े बेहतरीन, बड़ी सहूलियात, लेकिन इस मोटरवे का हम क्या करें जिस पे सफर करने वालों की न जान महफूज है, न इज्जत महफूज है, न माल महफूज है। इन अस्पतालों का हम क्या करें जहां पे मरीजों को दर्द के सिवा कुछ नहीं मिलता। इन तालीमी इदारों का हम क्या करें। आपने बड़ा अच्छे तालीमी इदारे बना दी, यूनिवर्सिटियां बना दी, कॉलेजेस बना दिए, लेकिन जहां पे इंसान साजी की बजाय इंसान सूजी का काम हो रहा है, तामीर की बजाय तखरीब का काम हो रहा है, नौजवानों को बुरी तरह तबाही और बर्बादी के दलदल में धकेला जा रहा है। न हमारे मुआशरे में किसी बड़े की तमीज है, न किसी छोटे पे शफकत है, न कोई तहम्मुल और बुर्दबारी है, न लोगों में बर्दाश्त का मादा है। तबाही ही तबाही फैली हुई है। वजह किया है कि हमने इंसान पर मेहनत नहीं की। क्या करेंगे हम इस मादी तरक्की को। आज का नौजवान अपने कमरे में बैठ के मीलों दूर अपनी गर्लफ्रेंड को फोन करता है और कहते हैं, जान मेरी जान, आज आपने दवाई नहीं ली थी, तबीयत आपकी खराब है, फिर दवाई ले लो। और उसके साथ वाले कमरे में अम्मी बेचारी खांस रही होती है। नौजवान को इतनी तौफीक नहीं मिलती कि अम्मी के पास चला जाए, अम्मी मैं आपके लिए कोई सिरप लेके आ जाऊं, कोई ब्रूफिन की गोली लेके आ जाऊं। नई तौफीक ही नहीं मिलती। हम क्या करेंगे इस मादी तरक्की का। इंसान ने बड़ी तरक्की कर ली, बड़ी तरक्की कर ली, लेकिन अखलाकी तौर पे इंसान आज जितना गिरा हुआ है, किसी जमाने में इतना गिरा हुआ नहीं था। वो भाई जंगल के दरिंदे भी इतने गिरे हुए नहीं होते। कभी आपने जंगल के दरिंदों में कभी सुना है, जंगल में कभी ऐसा हुआ हो जैसा कि इंसान करते हैं। 7 साल की बच्ची आपके मुआशरे के अंदर महफूज नहीं है, 5 साल का बच्चा भी आपके मुआशरे में महफूज नहीं है। तरक्की है कहां। जिल्लत, रुसवाई, पस्ती इस मुआशरे के ऊपर मसल्लत कर दी गई, क्योंकि मेहनत का रुख ही उल्टा है। जिधर हमने मेहनत करनी थी उधर कर नहीं रहे, जहां कर रहे हैं वहां तबाही के सिवा हमें कुछ नहीं मिला। मुझे एक बंदे ने कहा कि साइंस ने बड़ी तरक्की कर ली। मैंने कहा जिस तरक्की की आप बात कर रहे हैं, मादे पर मेहनत करने वालों ने बड़ी तरक्की कर ली, लेकिन जो लोग रूह पे मेहनत करते थे उन्होंने सदियों पहले ये तरक्की की है और आज भी तारीख के अवराक उस पर गवाह हैं। अगर आप जहाज की बात करते हैं कि इंसान ने जहाज इजाद किया है, हवा के दोष पे सफर करता है, तो आज से हजारों साल पहले रूह पे मेहनत करने वालों ने इसी हवा के दोष पे अपने तख्त उड़ाए हैं। गुदुव्वुहा शहरुन व रवाहुहा शहर। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का तख्त 10,000 कुर्सियां उस तख्त के ऊपर लगी होती थी और यह तख्त हवा में उड़ता था। आज तक 10,000 सीटों वाला जहाज साइंस इजाद न कर सकी। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने रूह पर मेहनत की थी, तख्त बनाया, तख्त ऐसा जो हवा में उड़ता था। न रनवे की जरूरत थी, न टायरों की जरूरत थी, न इंजन कभी फेल होता था, न फ्यूल का मसला होता था, न कभी हादसे पेश आते थे, क्योंकि रूह पर मेहनत करने वालों ने तरक्की की थी। अगर आप ये कहते हैं कि हमने चांद पे कदम रखा है, तो आपने तो आज चांद पे कदम रखा है। रूह पे मेहनत करने वाले आज से हजारों साल पहले चांद से उस पार, आसमान से उस पार, अगले आसमान से उस पार अर्श पे कदम रख चुके हैं, अर्श पे कदम रख चुके हैं। और अगर आप कहते हैं कि हमने मादे पर मेहनत की और समुंदर के लहरों पे सफर करना शुरू कर दिया, तो मैं कहता हूं कि रूह पे मेहनत करने वालों ने आज से हजारों साल पहले दरिया की सतह पर अपने घोड़े दौड़ाए हैं। आपने क्या तरक्की की है? आपने तो कश्ती इजाद की है, बहरी जहाज इजाद किया है। कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं बहरी जहाज चलाने के लिए। ये तो कोई कमाल नहीं है। कमाल तो यह है कि दरिया की सतह के ऊपर घोड़े दौड़ाए जाएं और घोड़ों की सुम्मों तक भी पानी न पहुंच सके।
आज से कोई 10 साल पहले की बात है, मेरा अंदाजा है मलेशिया का एक जहाज गिर गया समुद्र में। वो कोई कीमती जहाज था, पता नहीं उस जहाज में क्या कुछ था, लेकिन उस जहाज को ढूंढने के लिए आलमी ताकतें सरगर्म हो गई और ढूंढते रही। और सैटेलाइट का दौर है तो पूरी दुनिया में जहां कहीं कुछ होता है हमारी निगाहों में होता है और हम देख सकते हैं, और सुई भी हमारी निगाहों से कोई बंदा गायब नहीं कर सकता। ये बुलंद बांग दावे किए जा रहे हैं, लेकिन पूरा जहाज समुद्र में गिर गया, सालों गुजर गए, ये बड़ी बड़ी ताकतें लगी हुई थी, लेकिन जहाज का सुराग न लगा सकी। एक तो आपकी ये तरक्की है, और एक आपकी वो तरक्की थी कि जब ईरान के दरिया में हजरत साहबा किराम ने घोड़े डाल दिए थे और दरिया को पार कर गए इस हाल में कि घोड़ों की सुम्मों तक भी पानी नहीं पहुंच सका था। दरिया पार करने के बाद सिपाहसालार ने अपने साथियों से पूछा, किसी की कोई चीज गिरी तो नहीं है? एक सहाबी ने कहा कि मेरा एक प्याला था लकड़ी का बना हुआ, वो दरिया में गिर गया। आपको पता है कि लकड़ी का प्याला अगर दरिया में गिर जाए तो वो तो दरिया की लहरों के साथ कहां से कहां तक पहुंच जाए, लेकिन सिपाहसालार ने दरिया को हुक्म दिया कि मेरे साथी का प्याला वापस कर दो। तारीख इस बात पे गवाह है कि दरिया से एक लहर उठी और ऐसे ही वो सहाबी का प्याला किनारे पे फेंक दिया। सिपाहसालार ने अपने साथी को फरमाया कि ये अपना प्याला उठा लो। आप भी तो नहरें बनाते हैं, आप भी तो डैमें बनाते हैं, और डैम बनाने के लिए पता नहीं कहां कहां से खैरात मांगते हैं, और फिर भी डैम बनाने में आप कामयाब नहीं होते। आप भी तो नहरें चलाने की कोशिश करते हैं और तमाम तर मादी ताकतों के बावजूद नहीं चला पाते। एक तो आज की तरक्की है, और एक वो तरक्की मेरे दिलो दिमाग पे दस्तक दे रही है जब दरियाए नील पूरा की पूरा खुश्क हो गया था, पानी नहीं चल रहा था। एक मर्द दुर्वेश ने, जो अल्लाह के हकीकी खलीफा थे, हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हो, 2-4 सत्रों पर मुश्तमिल एक खत भेजा कि जाओ इस खत को दरिया में डाल दो, फिर देख लेना कि दरिया किया करता है। उसी खत को डाला गया। खत में ये लिखा हुआ था, दरियाए नील अगर तू अपनी मर्जी से चलता है तो बेशक न चल, और अगर तू अल्लाह की मर्जी से चलता है तो अल्लाह का नुमाइंदा उमर हुक्म देता है कि तू चल। दरिया ने फौरन चलना शुरू कर दिया। आज तक दरिया उसी रवानी के साथ चल रहा है। हजरत उमर की अजमत की गवाही दे रहा है। ओ क्या मादी तरक्की की बातें करते हैं। वो रूह पर मेहनत करने वालों ने वो तरक्की के मनाजिर दिखाए हैं कि दुनिया वाले शायद आज भी उस मकाम तक नहीं पहुंच सके। और अगर आप बात करते हैं कि हम बेतार पैगाम रसानी के मूजिद बने हुए हैं, आपकी बेतार पैगाम रसानी बहुत सारे पापड़ बेलने के नतीजे में है कि आपके पास मोबाइल होना चाहिए, तो बैटरी होनी चाहिए, तो बैलेंस होना चाहिए, तो पैकेज होना चाहिए, तो सैटेलाइट से वास्ता राब्ता होना चाहिए, फिर कहीं जाके पैगाम पहुंचता है। लेकिन हमने तो रूह पे मेहनत करने वालों को देखा, तारीख के औराक पे देखा कि मदीना मुनव्वरा में बैठे हुए थे, हजारों मील दूर मैदान जंग का मंजर देख रहे थे, और यहीं से बैठ के फरमाया, या सारिया तो अल जबल, सारिया पहाड़ की तरफ ख्याल करो, पीछे से दुश्मन हमला आवर होने वाला है। सारिया ने पीछे की तरफ देखा, दुश्मन का सामना किया और शिकस्त फतह में तब्दील हो गई। तो मेरे भाइयों, हम गलती पे हैं। हमने आखिरत पे मेहनत करनी थी, हम दुनिया पे मेहनत कर रहे हैं। हमने दिल पर मेहनत करनी थी, हम जिस्म पे मेहनत कर रहे हैं। हमने रूह पर मेहनत करनी थी, हम मादे पर मेहनत कर रहे हैं। और हमने अपने मन पर मेहनत करनी थी, हम तन पे मेहनत कर रहे हैं। हमने अपने बातिन पर मेहनत करनी थी, हम अपने जाहिर पे मेहनत कर रहे हैं। हमें चाहिए कि मेहनत का रुख सीधा कर ले। मेहनत हम कर रहे हैं, लेकिन वो नताइज नहीं मिल रहे जो नताइज हमें मतलूब हैं। क्यों नहीं मिल रहे? मेहनत का रुख ही उल्टा है। मेहनत सही रुख पे करें, ये दुनिया खुशहाली का घर बन जाएगा, ये अमन का गहवारा बन जाएगा, सुकून का मरकज बन जाएगा अगर हमने हकीकी रुख पे मेहनत करनी शुरू कर दी। अल्लाह करीम हम सबको समझने और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।